सरन का ही वर्ड्स को अगर यूज करना है तो he talks about the unknowable, but he also talks of the unknown. Right. The unknown is not necessarily unknowable. Right. A part of unknown is unknowable, but a part of unknown is knowable. And that is what we are trying to, when you say I'll figure it out, you will figure out, if you are able to figure it out, you will figure out from the unknown. Correct. Yeah. And I may So- conclude, or I may myself figure out that these things are unknowable. Huh. So, I mean, but certain things are unknowable. Correct. That much we have the intellect to know that there is a whole domain which is unknowable. And there is a domain called unknown from which I am all the time trying to extract and to know. So unknown is a field from which I am extracting in and putting it in the field of the known. But then again, a very mysterious movement is also happening from the known to the unknown, which we are not aware of, which we become aware only after a lapse of a good amount of time. Oh, my grandfather knew about this, I don't know. Or my ancestors knew about this pyramid. We don't know how they made it, but pyramids have been made. We know that. So at one point of time, we knew how to make pyramids. We no longer know. So the known has disappeared into the flown into the unknown. So this movement keeps going on from known to the unknown and unknown to the known. But in the middle of all this, the unknowable is omnipresent. So that is what I mean. Why should I assume that certain things are unknowable right now? Because I have read it somewhere or I heard it from somebody. No, that you don't have to assume. You have to, I mean, I would say, if you ask me, I would say that you can know that the unknowable is there. Correct. So, and it is there in every single movement which happens, whether internal or external, it is there. Even in the things that we say we now know, if you really dissect it and you want to figure out how did I know, you will have some answer. But if you go a little more, pay a little more attention, you will have to perhaps come to this conclusion that it happened. So if you come to the conclusion that I did it, I meaning only I did it, then it's a different kind of a conclusion. If you come to the conclusion that it happened, then the factor of unknowable is perhaps there in this happening. नहीं तो इसमें आपने 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं. एक तो ज्ञात है, दूसरा ज्ञात है और तीसरा ज्ञेय है. तो अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे प्रशांत जी अभी भी इसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखिए ज्ञात है, ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं, अज्ञात है वो भी ठीक है, पर जो अज्ञेय है कोई व्यक्ति उसका कैसे दावा कर सकता है? अगर दावा करेगा तो फिर तो वो ज्ञात ही हो गया. नहीं, यही तो मिस्ट्री है. नहीं, यही बात है. इसी पे थोड़ी बात और बढ़े. मैं ये दावा कर सकता हूं कि अज्ञेय है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जानता हूं. हाँ, पर उतना भी आप जान गए ना किसी चीज के बारे में कि भाई वो अज्ञेय है. हाँ, उसका आधार क्या है कि आप नहीं, किस आधार पे कह रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अज्ञेय है. जैसे ही हमने बोला वो अज्ञेय है तब तो मैं जान गया. आप यही प्रॉब्लम आप खड़ा कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो अज्ञेय है, मैं ये बोल रहा हूँ अज्ञेय है, खत्म बात. वो ये नहीं बोल रहा हूं मैं. अज्ञेय है और वो नित्य वर्तमान है. So that is basically आप ये assumptions लेके आपकी, this is your assumptions by leading your life, as opposed to a scientist who will says that there is no, I think he starts out saying there is nothing unknowable. We will figure it out.
Yes, yes, that is the I mean, if we go to Saran, then that is the hubris that Saran talks about in the present times, in the modern times. Yeah, I That- think mainly because he sort of makes it a cause and effect relationship. Because of this hubris, he says there is no limitation on knowledge. That we don't know when to stop, or we don't know what he says, what ought to be known. That is what he says, basically. And that comes from this reverence or unknowable thing. Once you say there is nothing called unknowable, then there is no question of any limitation. I will know, I want to know, I'll figure it out, I'll keep knowing forever. हाँ, तो तुम जो बात कर रहे हो वही मैं करने वाला था, हम दूसरी तरह से बोलने वाले थे। अनसर्टेनिटी जब तक आपको दिखाई देती है, जब तक अनिश्चितता दिखाई देती है, तो अननोएबल को उसके साथ रिलेट करने में क्या प्रॉब्लम? उसके पीछे ही है वो, अनसर्टेनिटी के पीछे ही that unknown. Uncertainty is a manifestation of the unknowable. Yes, exactly. Or the unknown, whatever. The unknown and unknowable are not separate silos. It's just that unknowable का ही unknown का ही हिस्सा है unknowable. Unknowable, हाँ. लेकिन आप अननोएबल को परिभाषित कर रहे हैं। बेसिकली आपने एक टर्म डिफाइन किया, अननोएबल। अब अज्ञेय तुमने बोला वही है, अज्ञेय। हाँ, अज्ञेय को आपने डिफाइन किया, भाई ठीक है, वो डेफिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसका कोई आप उदाहरण दे सकते हैं? नहीं, ये तो तुम उसका उदाहरण फंसाना क्यों चाहते हो? उसका वेरी क्लियर अबाउट इट। दे सकता है। इसमें क्यों, ये कैसे दे सकते हैं? अगर दे सकते तो फिर अज्ञेय कैसे हो? पवन भाई, उसका उदाहरण सिर्फ सर्वज्ञ दे सकता है। नहीं, उदाहरण नहीं है, मतलब आप, मैं ये मजाक की बात नहीं है। अगर हर क्षण आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हर समय, हम में से हर एक आदमी और हर एक वस्तु में क्रिया हो रही है ना, एक गति हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये जो हो रहा है, आदमी उसको कुछ सोच के करता है, कुछ अनजाने में हो रहा है। जो भी हम कुछ करते हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट की वजह से और भी बहुत सारे कारणों से एक परिवर्तन हो रहा है। There's a change happening all the time. We all say we know that change is a constant. हम बोलते ही हैं change is a constant. What is that change? The change is what we can see and we can perceive that हाँ, it was like this and now it is like this. ये जो परिवर्तन हुआ है, इस प्रक्रिया में किसका योगदान है? इसमें कौन-कौन से फैक्टर इसमें they have played a role in this. If we look at that, then perhaps we'll be able to understand what is unknowable. And in this, I just let me add one more thing. In this unfoldment or in this happening, there is an element of uncertainty all the time. It may happen this way or it may happen in another way. But कुछ होगा जरूर, लेकिन वो क्या होगा उसके, वो पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट सब एक्सेप्ट करते हैं अब ये वर्ल्ड व्यू, अभी ये वाला, जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी वर्ल्ड व्यू वाले साइंटिस्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को स्टडी करते, दे ऑल से देयर इज एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी, वी कांट नो। They work with that principle and they're working they're creating all their scientific research now based on this understanding that it's inherently unknowable. कीर्ति जी आप कुछ कह रही थी? बोलिए। मैं ये कह रही थी कि the unknowable, maybe it may not be possible for us to understand it or know it, but can we at least feel it? Is there something that is happening and that could also be uncertain, but the unknowable can, at least some bits of it can be felt. कि मेरे साथ जो ये हो रहा है, जो हम चेंज की बात कर रहे थे, that there is something
that is at work, and therefore the change that I'm experiencing is also, I can't see it, I can't give it a form, but I can just feel it very strongly within me. I don't know. I mean, I'm also sort of trying to relate it to my own experiences and see that कि उसको थोड़ा फील महसूस किया जा सकता है. बेसिकली आप अनुभव और समझ के फर्क को की बात आप कर रही हैं. इस पे पवन जी क्या कहते हैं आप? क्या चीज? समझना और अनुभव करना, अनुभूति. हाँ, या हमको पता नहीं अनुभव है कि नहीं, ये तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन भास आभास तो है कि ये है. और ये काफी, मतलब अगर भास आभास और अनुभव के बीच में और कोई स्टेज है तो वो है अनुभव. आई कांट से, बट यस, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन that this uncertainty is omnipresent, and uncertainty is, for me, it's a part of unknowable. जब भी हम समझने की बात करते हैं कि साहब हमको इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, या कोई केले के पौधे को हम समझते हैं, आम को समझते हैं, गाय को समझते हैं, कुत्ते को समझते हैं, तो वहां पे क्या उसका अर्थ होता है? मतलब सामान्य रूप से तो यही देखा गया है कि जब हम कहते हैं समझते हैं तो उसके आचरण को समझ गए, जान गए, इसका आचरण ऐसा. बिल्कुल. उसका समझने का इजी डेफिनेशन है, क्या आप उसको क्रिएट कर सकते हो? क्या आप उसको क्रिएट कर सकते हो? मतलब इफ यू कैन क्रिएट इट, देन यू अंडरस्टूड इट. क्रिएट क्या करें? क्रिएट तो कुछ होता ही नहीं है. क्रिएट तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं कुछ हद तक, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. क्रिएट तो उसमें भी नहीं होता है. वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. We can't create, for instance, we can't create the basic elements, na? Yet, correct. That is what, that is the limitation we are. That is why we are not God, or whatever you call it. We call it. But somebody is. So if you really truly understand something, you should be able to create it. हाँ, तो वो जो फिर इस पे आ जाएगी ना बात, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में हमने कॉज इफेक्ट को दो तरह से देखा है. उपादान कॉज है और निमित्त कॉज है. दो कॉज है, और निमित्त का कारण एक से अधिक होते हैं. जैसे अगर वो क्लासिकल एग्जांपल है कि आप घड़ा बना रहे हैं, तो घड़ा बनाने में आपको कुम्हार की जरूरत है, चाक की जरूरत है. ये दोनों निमित्त कारण है. और उपादान कारण है क्ले. करेक्ट. तो उपादान कारण को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, निमित्त कारण बदल सकता है. करेक्ट. So this understanding is lacking in generally lacking in modernity. So उधर बस cause और effect की बात होती है, but यहाँ पे बहुत clearly उपादान और निमित्त की बात है. तो उपादान जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, और निमित्त कारण भी है ना, और निमित्त भी जो हमको दिखाई देता है वो है, but they are more than that. और वो हम नेगेटिव सेंस में ही समझ सकते हैं. मान लीजिए मैं यहाँ से, आप मुझे बोले कि बैंगलोर आओ, और मैं प्रयास करूं बैंगलोर आने का, और मैं ट्रेन से या हवाई जहाज से या गाड़ी से मैं तय करूं कि ऐसे मुझे जाना है, इस दिन जाना है, इस फ्लाइट से या इस सड़क से वगैरह वगैरह, पूरी प्लानिंग मैं कर दूं. उसके बावजूद हो सकता है कि मैं बैंगलोर ना पहुंच पाऊं. अगर मैं पहुंच जाता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन तो मेरा यही है कि मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया, एंड आई एम द डूअर एंड आई हैव रीच्ड, एंड दैट आई गिव फुल क्रेडिट टू माय सेल्फ. व्हेन आई एम नॉट एबल टू रीच,
Then I do a postmortem and I find the causes which came in my way, obstacles which came in my way of not reaching Bangalore. Now, if you, I mean, I put it like a mathematical model, agar aap banaye iska, ki those reasons which stopped me from coming to Bangalore, if I give them different names, X1, X2, X3, X4, and go up to X infinity, they don't manifest all the time. But sometimes they manifest. Sometimes X1 manifests, sometimes X2, sometimes X3. So where are they when I reach Bangalore? When I did not reach Bangalore, then one of them came up. X1 came up, or X2 came up, or X3 came up. Where were they when I reached Bangalore? I can say, I mean, my answer to that is, they did not manifest, they were there. And ये इसको मॉडर्निटी जो आज की आधुनिकता है वो इसको जीरो करने में लगी हुई है कि ये हो ही अनसर्टेनिटी को जीरो कर देना है. But in spite of that, it is not possible. So sometimes when I see these train timings in Europe, and especially in Europe, I mean, I was very surprised that I was standing at the station पे आप खड़े हैं तो ट्रेन आने का अराइवल टाइम होगा 11.02, 11.37. It will never be 11.30 or 11.35. I think it is some kind of a problem that they have to show that they have conquered uncertainty. To make it that वो बीच में कहीं डालेंगे. Precise. मैंने काफी नोटिस किया ये कभी भी उस पे 5 वाले उस पे नहीं आता स्लॉट पे. तो ये this is typical of modernity, that you want to tell yourself that you have conquered uncertainty. You are not just nimitta. You are not, that is the arrogance of a modern mind, that to not accept that I am a nimitta. Yeah. जो बोल रहे हैं ना, something like that. Okay. पवन जी, आप आभास और अनुभव में भेद कर रहे थे कि आभास और अनुभव वो क्या? हाँ. क्योंकि अनुभव का पता नहीं है ना. अनुभव तो ऐसी चीज है होती होगी कि जब आपको वो होता है तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता वहां से. It becomes part of your being. It already is in a way, but you have not realized it. It is only still a very intellectual thing. Intellectually understanding something like cigarette smoking is injurious to health. Intellectually हम समझ गए, लेकिन I still smoke. Okay? क्यों? क्योंकि it's not part of my being अभी तक. So ये gap जो है between rational understanding and realizing it fully, इसके बीच में कुछ stages हैं, और वो stages को भास, आभास और एक और नाम है मैं भूल रहा हूं, अनुभूति बोलते हैं क्या? हाँ, शायद अनुभूति. उसके बाद अनुभव. ये मतलब ट्रेडिशन से ये नाम मैं ले रहा हूं. भास, आभास, अनुभूति, प्रतीति भी है एक. I mean, there are 4 stages, and then अनुभव. लेकिन इसका बहुत दुरुपयोग भी तो होता है पवन जी, और हो ही रहा है कि भाई अनुभव के नाम पे आप कुछ भी क्लेम करो. नहीं, वो छोड़ो यार, उसको जो क्लेम करता है उसको क्यों, उसमें क्यों जाए? नहीं, ये उसको नहीं, छोड़ो. वो बात ठीक है आपकी. हाँ. तो नहीं, इसको थोड़ा और बड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा कि मतलब अनुभव आप किसको कह रहे हैं, और फिर अनुभव जिसको आप कह रहे हैं वो आइडेंटिकल पैरामीटर्स के अंदर जो है वो सबको हो सकता है कि नहीं. अगर वो बदलता है तो फिर वो अनुभव नहीं हुआ ना. नहीं है, मैं मान लिया, बिल्कुल मानता हूँ. अनुभव होने के बाद अनुभव एक चीज का नहीं होगा मेरे हिसाब से. अनुभव होगा तो सभी चीज का होगा, और उसके बाद जो एक होना चाहिए वो ये कि आपके अंदर एक आश्वस्ति और निश्चिंतता का भाव आ जाता है. एंड दैट इज द अल्टीमेट.
then nothing can shake you because you are completely self-assured. You are completely secure. You realize that you are not the doer in the ultimate sense, and it is all happening, and you are part of that. I suppose. Again, it's a मुश्किल है ना बात करना. Faith ना पहुंचे, faith. हम्म. अनिश्चितता तो faith से आती है जो जिस. हाँ, पर अनुभव, faith तो ठीक है, पर अनुभव होना चाहिए. I mean complete. वो जब मिल जाएगा तो एक ही हो जाएगा ना सब कुछ. Then you won't have these different things, ना distinctions थोड़ी, उसमें एक हो जाएगा सब. I have full faith, I have full निश्चिंता, I have full आश्वस्ति, एक ही बात हो जाएगी. एक ही बात. सरन साहब को जितना हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, तो हमने ये पाया कि वो फेथ को बड़ा मतलब सेंटर में रख के मतलब उसका काफी महिमा मंडन करते हैं. तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि वो जो फेथ शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, क्या असर है? देखो, सरन साहब ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो पहुंचे हुए हैं. पहले तो ये बता, तुम समझ लो ना इस बात को, क्योंकि तुम एक ऐसे आदमी से मिले हुए हो जो कि पहुंच गए थे ना. ये मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, इसलिए उसको रखना पड़ेगा कि he never claimed that he has reached that stage. In fact, उन्होंने मतलब he did not reach that stage. क्लेम नहीं किया ये एक बात है, पर वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे थे, इसको बोलने में उनको कोई झिझक नहीं थी. बट हमको लगता है कि ये भी नहीं है कि he was like you and me. He could see certain things. तो उस प्रोसेस में when you are trying, when you are उस प्रोसेस प्रक्रिया में आप जब होते हैं, तो उस प्रक्रिया में ही तो ये बात हो रही है ना कि there is something which we call unknowable. ये जो कन्विक्शन है, ये फेथ से अलग थोड़ी ना है. अननोएबल कोई अलग थलग चीज नहीं है ना. unknowable is a part of this being, no? जो कुछ घट रहा है उसमें उसका एक रोल है ना, बड़ा रोल है, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है. लेट्स से ये अननोएबल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, अननोएबल के अंदर ही सब कुछ घट रहा है. और ये अननोएबल और अननोन को मतलब थोड़ा सा मैं इस पे और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाउ डू वी, इज देयर अ वेरी शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू और नॉट. अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूं ये बात. अननोन मुझे दिखाई, अननोएबल मुझे दिखाई देता है, लेकिन अननोन जो जिसको हम अननोन कहते हैं, उसी के अंदर अननोएबल भी है, ऐसा मुझे लगता है. जिसको हम अननोन कह रहे हैं उसका एक हिस्सा अननोएबल है और दूसरा हिस्सा नोएबल है, ऐसा मुझे दिखाई देता है. तो जो नोएबल है उसकी तो चेष्टा होती ही रहती है, लेकिन यू आर acutely aware of this large domain which is unknowable, and that too is infinite, just like unknowable is infinite. Unknown is infinite, and one infinite is part of the other infinite. Pawanji, when you say unknown is infinite, then it will become unknowable, no? Because it is beyond time, infinite हो गया वो. हाँ, उस infinite से finite में movement है, लेकिन उस infinite से finite में movement है,
but the infinite still remains infinite. Of course, तो obvious बात बोल रहा हूं मैं. But infinite is not a static thing, ना. उस infinite से movement हो रहा है finite में, which is the known. और इस known से भी जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, infinite की तरफ movement भी हो रहा है. एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये दोनों मूवमेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और उस मूवमेंट में एक डोमेन है जिसको हम कह रहे हैं, जो कि इनफाइनाइट है, जिसको हम कह रहे हैं अननोएबल. वो दिखाई दे, अगर हम ध्यान दें घटना पे, क्रिया पे, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग वी कैन रियली वर्क ऑन, वी कैन सी. ये जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट हो रहा है, चाहे एटम्स का मूवमेंट हो रहा है, या कोई भी हमारे विचारों का मूवमेंट हो रहा है, हम मूवमेंट को ही देख पाते हैं ना. उसी को हम फिगर आउट करने की चेष्टा करते हैं. तो ये जो मूवमेंट को ही हम हैपनिंग कह रहे हैं, मूवमेंट को ही हम लोग अनफोल्डमेंट कह रहे हैं, मूवमेंट को ही हम लोग गति कह रहे हैं, मूवमेंट को ही हम लोग डूइंग कह रहे हैं. अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नाम दे रहे हैं हम लोग, और हर एक नाम का अपना एक स्पेसिफिक अर्थ है. लेकिन ये सभी चीजें मूवमेंट को दर्शा रही है. तो ये जो अनफोल्डमेंट या हैपनिंग हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको आप रिजल्ट कह रहे हैं, आप बोलते हैं ये काम करूंगा, ऐसा रिजल्ट आना चाहिए. ये जो हो रहा है, इस होने में बहुत चीजों का हमारे अधिकार में है, बहुत कुछ हमारे अधिकार में है. लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखेंगे, ऐसा मैं अपनी बात कह रहा हूं, कि जब इसको ईमानदारी से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि इसमें बहुत कुछ हमारे अधिकार के बाहर है. यानी इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, इट विल नेवर बी अंडर आवर कंट्रोल. दैट इज नॉट टू से कि अभी जो मेरे अधिकार में उतना ही हमेशा रहेगा. हो सकता है कल कुछ और मेरे अधिकार में आ जाए, जो कि हम अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो चीज हमारे अधिकार में नहीं थी आज से 100 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, अब हमारे अधिकार में आ गई है. बहुत चीजें हम अब कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो 10 साल पहले नहीं कर सकते थे. तो हो सकता है 10 साल बाद और हम कुछ चीजों को कंट्रोल कर लें, हमारे अधिकार में आ जाएं. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो हमारे अधिकार में कभी भी नहीं हो. ये ध्यान देने से ऐसा अगर आपको आभास होता है, this is not a matter of logic, it's more matter of paying attention. And if you come to this kind of a understanding that yes, it is so, this is again not to say कि आज जो आप देख रहे हैं कि भाई हम आपके अधिकार में नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है. हो सकता है कल के दिन उससे ज्यादा आपके अधिकार में आ जाए, लेकिन वो जो अननोएबल है, मतलब जो आपके अधिकार में नहीं है, वो हमेशा ही रहेगा. इस कंक्लूजन पे आप अगर पहुंचते हैं और फिर उसको आत्मसात करते हैं, यानी यू आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ दैट, नॉट इन अ स्पेसिफिक मैनर दैट अच्छा ये मुझे नहीं पता, वो मुझे पता नहीं है. ये जो नहीं पता है वो तो पता चल जाएगा, आपको चल सकता है, लेकिन जिसको आप पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते. And yet you know that it is there. It is like I know that I'm going to die, right? But I don't know when I'm going to die. Can I think, no, a stage will come when a human being will know that when he's going to die, unless he decides to commit suicide. We are not talking of that. Even that is questionable. If I decide to commit suicide tonight, will I be successful 100%? I don't know. But anyway, leave that aside. That becomes a little on the ridiculous side. I'm just saying, a normal human being, when he's going to die, when he's going to fall sick, yeah,
Is it going to be completely predictable? I doubt it. उसकी जरूरत भी क्या है? देखिए, जब तक प्रयोजन को निश्चित नहीं करेंगे ना, तो उलझते ही चले जाएंगे। भाई सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहला तो यही अरे है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि अननोएबल है, बस इतनी सी बात है। बस हाँ, उतना सफिशिएंट तो है। ये नहीं, प्रशांत ने कुछ बोला था, उसकी प्रतिक्रिया में मैं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि इसको जानना जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये जान सकते हैं कि बहुत सारा गे है और हमेशा गे रहेगा। But Pavanji, that is how we are thinking in the modern terms, right? We are, as a collectively, the mankind is going towards that. We want to reduce the amount of unknowns. So our goal is that only. Yeah. Absolutely. That's where we are going. But the point, no problem in going towards that, but to have that we will finish this, ये रहे uncertainty को हम zero कर देंगे। ये माने एक तरफ तो पागलपन है, दूसरा इसके परिणाम, ठीक है पागलपन है, कोई पागल है, चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन उसके परिणाम जो होते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है ऑन द ह्यूमन साइकी, दैट इज वरीसम। Correct. Because so it doesn't stay there. Sorry. So I think that is what Saran sir says, that some things probably you need to strive for, and some things we should not. There should be limitations to what you approach as far as your knowledge and those things are concerned. Yeah, absolutely. I agree with him that autotelic जो बात वो बोलते हैं ना, that is a very important thing. और उसकी एक कहानी है बहुत सुंदर, उसमें शायद टाकामोरी में भी है. When this guy is flying high in the air. Yeah, Isaac Right? Dennison wala. It's a beautiful story, you know. Yeah. वो सबको बात सुनना चाहिए। एक आदमी है, वो प्लेन में उड़ रहा है, तो एक ट्राइब अफ्रीका का एक आदमी है, जब नीचे आता है तो बोलता है, तुम इतना ऊपर गए, क्या तुमने डिड यू सी गॉड? तो बोला नहीं। तो बोला अगर और तुम ऊपर जाओगे तो तुम दिख सकते हो गॉड को? तो बोला मुझे नहीं लगता कि मुझे दिखेंगे। तो बोलता फिर क्यों उड़ रहे हो भाई? इतना ऊंचे जाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। क्या होता है ना कि जैसे सरन साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, कि उन्होंने एटम बम का एग्जाम्पल दिया कि भाई कहीं शायद अरुण जी ने पोस्ट किया था, कहीं मैंने पढ़ा था रिसेंटली। तो अभी क्या है, साइंस में मतलब कोई भी आइडिया आया, कोई कल्पना आई, तो अब वो चीज बननी चाहिए, इस पे काम शुरू हो जाता है, और बनेगा तो उसका प्रयोग भी होगा। हाँ, बिल्कुल है ना? तो वो बिल्कुल। और अभी आप साइंस कम्युनिटी में देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, चैट जीडीपी को लेके बड़ी बहस चल रही है अभी। और यहाँ भी वही है कि अब वो संकल्पना में आ गई है, तो साहब अब वो बनना भी चाहिए, और बनेगा तो उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और समाज को उसको भोगना भी होगा। बाकी जो उसके बाद फल परिणाम होंगे वो होंगे। ये जो सोचने का जो तरीका है, ये बहुत खतरनाक है, एकदम ठीक नहीं है। नहीं, तो यही तो समस्या है ना, कि इससे दो चीजें मुझे लगता होती है। एक तो ये है कि फल परिणाम देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, जब होगा तब हम उसको टैकल करेंगे। अभी आज के दिन नहीं सोचना है, इसलिए वहां पे फिलॉसफी इज अ डर्टी वर्ड इन एजुकेशन। मैं तो बहुत साल पहले अमेरिका गया था, और कुछ एक स्कूल में बात होने लगी कुछ फिलॉसफिकल, तो नहीं फिलॉसफी की बात मत करिए। मतलब इट्स ऑलमोस्ट जैसे कि कोई हमने बहुत ही गंदा टॉपिक शुरू कर दिया हो ऐसा। तो ये कल क्या होगा, उसको जब वो होगा तब हम देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि हर चीज को रेमेडियल सेंस में ही देखना है, एक रिजॉल्व करना है इशू को, उस सेंस में देखना ही नहीं है कि अगर आपका कोई बीमारी हो गई तो उसको आपको किसी तरह उस बीमारी को आप टैकल कर लीजिए, उसके बाद वो टैकल करने की प्रक्रिया में एक दूसरी बीमारी होगी, तो उसको फिर जब होगी तब हम टैकल करेंगे। तो
तो आप कोई दवाई खाते हैं जिससे आपके सर दर्द ठीक होता है या और कुछ दर्द ठीक होता है, पर आपकी लिवर खराब होती है, तो लिवर खराब आज तो नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, तब हम 10 साल बाद लिवर को ठीक करेंगे। आज तो हम उसको ठीक कर लें। ये एक बेसिक फ्लॉ, फंडामेंटल फ्लॉ आ गया है इन द वे वी अप्रोच थिंग्स। And this also goes to the way we define things. For instance, my modern medicine doesn't define health, no? और उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं लगता है कि हम हेल्थ की डेफिनेशन ही नहीं है हमारे पास, तो हम एब्सेंस ऑफ डिजीज को हेल्थ बोलते हैं, एंड वी आर ओके विद दैट। तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी पॉलिसी, आपका सारा फोकस जो होगा वो डिजीज फोकस्ड होगा, डिजीज को रोकने के लिए, हेल्थ को बनाए रखने के लिए फोकस नहीं होगा। अभी आयुर्वेद में हेल्थ की सिंपल है भाई, वात पित्त कफ अगर संतुलित है और छह रस अगर संतुलित है तो आप हेल्दी हैं। आपके पास बहुत बड़ा मसल होना चाहिए या आप 10 किलोमीटर जब तक दौड़ के नहीं आए तब तक आप हेल्दी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए फिर मुद्दा जो है फेथ का ही आ गया कि साहब ऐसे कई अच्छे और बड़े विद्वान प्रखर लोगों को हमने देखा कि जिंदगी भर आयुर्वेद की वकालत करते रहे और जब बीमार पड़े तो भाई कीमोथेरेपी करा लिया जो है जाके। तो तुम किसको दोष दोगे? उनको दोष दोगे या व्यवस्था को दोष दोगे? नहीं, दोनों है कि भाई एक आदमी को हम जानते हैं, उनको कैंसर हुआ और उनका इतना कन्विक्शन था आयुर्वेद के प्रति कि वो अंग्रेजी दवाई नहीं खाए तो नहीं खाए, और जो है ठीक है वो सरवाइव नहीं किया और इवेंचुअली वो मर गए। लेकिन और तो हमने नहीं देखा ऐसा एग्जाम्पल। तो मतलब दोनों साइड से खेल चल रहा है। वो तो मॉडर्न एलोपैथी सिस्टम तो जो कर रही है सो कर ही रही है, और इधर जो है वो भी फेथ नहीं है, कन्विक्शन नहीं है आपको आयुर्वेद में। देखो कन्विक्शन तो उधर भी नहीं है। हाँ, तो ये तुम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मत मिलाओ, कन्विक्शन वहां भी नहीं है। हम अगर जाके कीमोथेरेपी कराते हैं तो मेरा कोई कन्विक्शन नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा 10 साल तक, पर मैं इसलिए करा रहा हूं कि मेरे चारों तरफ का जो माहौल है वो मुझे पुश करता है कि वो करा लो भाई। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सबको ठीक लगता है कि हाँ यही ठीक है। और जब मैं आयुर्वेद कराता हूं तो रोज आकर के कोई ना कोई शंका पैदा करता है मेरे दिमाग में कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं ये नहीं। ये रोज कोई आके ये नहीं बोलता तुम बहुत ठीक कर रहे हो। दूर बैठा हुआ पवन बोलेगा 1000-2000 किलो में, हाँ ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं वो रोज उनकी आंख से, उनके मुंह से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये दिखाई देगा कि हम बहुत गलत चीज कर रहे हैं, हम ठीक नहीं कर रहे। तो मैं किसको दिखाने के लिए आयुर्वेद के पास जाऊं? किसको प्रूफ करना है मुझे? तो ये जो संसार है वो चलता है माहौल से, वातावरण आपका क्या है आसपास का, उससे चलता है। ये सब फालतू बातें हैं कि आपका कन्विक्शन और ये वो ठीक है, टू एक्सटेंट दैट इज राइट, but when if we live according to your principle, so what? कि ज्यादा से ज्यादा 10-5 लोग याद करेंगे कि हाँ भाई ये आदमी बड़ा प्रिंसिपल था, ये इस तरह से जिया। कितने साल याद रखेंगे? 5 साल, 10 साल? और मेरे मरने के बाद कोई याद रखे ना रखे, मुझे उससे क्या मतलब? ये निसर्गदत्त महाराज को किसी ने पूछा ना, आप संत हो, मांस खाते हो, तो वो कह रहे थे कि मैं तो मांस खाने वाले परिवार में जन्मा हूँ। कौन बोले? निसर्गदत्त महाराज। हाँ, कहते कि आई डोंट लाइक टू मेक ए फस, ही सेड। यस, एग्जैक्टली। संत हैं वो, लेकिन ही डजंट वांट टू मेक ए फस, नो? या रविंद्र शर्मा जी का भी यही होगा कि उन्होंने, बिल्कुल यही होगा। वो महाभारत में वो कहानी है ना,
वो जो एक ऋषि थे, वो ऋषि जो है वो बड़े, उनको एक दिन वो एक चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी, तो उन्होंने चिड़िया की तरफ देखा और चिड़िया एकदम जल के भस्म हो गई। तो उनको लगा हम तो पहुंच गए। तो फिर वो गांव में गए जब अपना भीख मांगने, तो एक दरवाजे पे जब वो भीख मांग रहे थे तो वो घर की जो महिला थी उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये बहुत नाराज से हो गए कि इतना मुझे वेट कराया। तो उसकी तरफ जरा गुस्से से देखे तो वो महिला बोली, महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूं। तो इनका एकदम वो हो गया कि अरे ये इसको कैसे पता कि अभी मैं चिड़िया को भस्म करके आया हूं। तो ये बोले कि तुमको कैसे मालूम? बोला पहले तो आप ये जान लीजिए कि मुझे देरी क्यों हुई। माय हस्बैंड वाज हैंडीकैप्ड, मैं उनकी सेवा कर रही थी इसलिए मुझे आने में देरी हुई। और आप जो है, आपको छोटी सी सिद्धि मिली और आप इतना अहंकार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो बोले तुमको ज्ञान कहाँ से, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने अपने गुरु का नाम बताया, वो एक कसाई था। His धंधा was मांस बेचना, जानवरों को काटना। ये तो खैर हमारे यहाँ बहुत इस पे बात हुई है।